Hello children, welcome to chapter number 5, Coal and Petroleum. Here I am showing you the book to explain the chapter because some of the children they don't have the book, so I am trying to show it, and later I will show you some videos also. So here basically you can see the name of the chapter is Coal and Petroleum. We have already studied about materials. We know that the materials they can be divided into 3-4 types. Now here there are various kinds of materials. Now it's a different type in which we are going to study the chapter. There are different types of materials which can be divided into natural and man-made. So you can see various kinds of materials around you and you can classify them as natural materials and man-made materials. So this is the table that you have to fill on your own. So you can fill the table on the basis of natural materials and man-made materials. So here some of the examples like these are given here: air, water, soil and minerals. So are they natural or man-made? Will you be able to answer them? Air is man-made or natural? You know it very well, so you can fill the answers on your own. Now, can we all use our natural resources forever? That means the air which is present, the water which is present, the soil which is present and the minerals which are present, can we use all of them forever? So air, you can say yes, we can use air forever, but what about water? Can you use water forever? If you don't use water judiciously, you won't be able to use it forever. Similarly, soil, yes, soil is there, but what about minerals? Can you use minerals forever? If you don't use minerals judiciously, you won't be able to use minerals forever. So on the basis of this, whether the materials can be used forever or not, on the basis of that, they can be classified as exhaustible and inexhaustible. So they can be, the materials can be broadly classified as exhaustible and inexhaustible. So here, inexhaustible natural resources are the resources which are present in unlimited quantity. That means they are not limited and you can use them as much as you want. For example, sunlight, air, these are unlimited. सनलाइट और एयर जो है वो अनलिमिटेड है, आप उसको कितना भी यूज़ कर सकते हो, है ना, वो ख़त्म नहीं होगा. तो जो चीज़ें आप कितना भी यूज़ कर सकते हो और वो ख़त्म नहीं होता, उसको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं. Similarly, exhaustible natural resources. So these are the ones which are limited, which if you don't use judiciously will get exhausted. मतलब ये जो चीज़ें हैं इनको अगर आप सोच समझ कर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा. यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मैं सरल तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम लोगों ने कुछ भी चीज़, पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ी, कुछ भी चीज़ हम लोगों ने ले ली और हम लोगों ने उसको कुछ बच्चों के ग्रुप्स बनाए, जैसे कि 7 ग्रुप्स बनाए, ठीक है, और हम लोगों ने उनको सब बांट दिया. फिर उस ग्रुप को भी हम लोगों ने 4 पार्ट में बांटा, मतलब हर एक ग्रुप में 4 सब ग्रुप्स हैं, ऐसे करके बांटा. अब हम लोगों ने हर 6-7 ग्रुप्स को पॉपकॉर्न, पीनट या रोस्टेड ग्राम जो भी हमें देना है हमने उनको दे दिया. और उसके बाद हमने उसको जो 4 सब ग्रुप्स में बांटा था उसमें पहले वाले सब ग्रुप को हमने जनरेशन 1 बोला, दूसरे को जनरेशन 2 बोला, थर्ड वाले को जनरेशन 3 बोला और फोर्थ वाले को जनरेशन 4 बोला, ठीक है. और उसके बाद में हम लोगों ने कहा, जनरेशन 1 को कहा कि आपको जितना भी खाना है आप खा लो और उसके बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे देना. इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन को जितना खाना है खा लो, फिर वो नेक्स्ट को दे देना. फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको जितना खाना है खा लो, फिर वो नेक्स्ट को दे देना. इस तरीके से हमने उन्हें समझाया. अब हर 7 ग्रुप जो थे, हर 7 ग्रुप में 4-4 सब ग्रुप थे, उनकी सब की फर्स्ट जनरेशन ने खाया, उन्होंने सेकेंड जनरेशन को ट्रांसफ़र किया, सेकेंड जनरेशन ने खाया, उन्होंने थर्ड जनरेशन को ट्रांसफ़र किया, उनके थर्ड जनरेशन ने फोर्थ को ट्रांसफ़र किया. अब हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप में तो फोर्थ जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन किसी ग्रुप में हो सकता है फर्स्ट जनरेशन में ही सब खत्म हो गया.
किसी में सेकेंड जनरेशन में पॉपकॉर्न ख़त्म हुआ, किसी में थर्ड जनरेशन तक ख़त्म हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट जनरेशन ने कितना सारा खाया, कितना यूज़ किया। अगर उसने जुडिशियसली यूज़ किया होता, मतलब लिमिटेड खाया होता, पूरा का पूरा उसने नहीं खा लिया होता, तो वो सेकेंड जनरेशन को दे पाता। इसी तरह से सेकेंड जनरेशन ने अगर जुडिशियसली यूज़ किया होता तो वो थर्ड जनरेशन को दे पाता, और थर्ड जनरेशन ने अगर जुडिशियसली यूज़ किया होता तो वो फोर्थ जनरेशन को दे पाता। तो इस तरह से क्या है कि ये लोग जनरेशन टू जनरेशन जो है चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर सामान को ध्यान से जुडिशियसली यूज़ करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ द मटेरियल्स जुडिशियसली। दैट मीन्स अच्छे से सोच समझ के इस्तेमाल करें ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है। नाउ fossil fuels. What are fossil fuel? Up now we have already studied what are exhaustible and what are inexhaustible natural resources. So here we are studying about them. Okay, exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas, these were formed from dead remains of living organisms. So when the exhaustible natural resources, they are formed from dead remains of living organisms, they are called fossils. Okay, and the fuels which are obtained from fossils are called fossil fuels. तो ऐसी एग्जॉस्टिबल मतलब जो ख़त्म होने वाली नेचुरल रिसोर्स है, अगर उनको हम कहाँ से ऑब्टेन करें, डेड रिमेन्स से ऑब्टेन करें, चाहे वो प्लांट्स के डेड रिमेन्स हो, चाहे वो एनिमल्स के डेड रिमेन हो, तो हम उन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं. ओके, so you have understood what is fossil fuel. Here the definition of fossil fuel is being given to you. Now the example of fossil fuel is coal. See, this is coal. Coal is the example of fossil fuel. You all know what is coal. It is a hard stone and is black in color. ये hard stone है जो कि काले रंग का है. Coal is one of the fuels used to cook food. इससे आजकल तो हम इस्तेमाल नहीं करते, पर पहले किया जाता था. पर आजकल भी हमें जब तंदूर वगैरह बनाना होता है तो हम कोल को यूज़ करते हैं. इसे हम रेलवे इंजन्स में यूज़ करते थे स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. Fuel क्या चीज़ होती है जिसे burn करके हम उससे energy produce करते हैं. That is called fuel. So this energy can be in the form of heat energy, in the form of electrical energy. Okay. Now, story of coal. You all know how coal is formed. So that is what is written here. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. Dead plants got slowly converted to coal. As coal contains mainly carbon, the slow processes of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also a fossil fuel. Okay, so 300 million years ago, 300 मिलियन ईयर के पहले जो डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे वेटलैंड्स के, वो जो बरी हो गए सॉइल के नीचे, उसके ऊपर बहुत सारा सॉइल इकट्ठा हो गया, बरी हो गए वो, और वो कंप्रेस हो गए, मतलब दबाव के कारण अंडर प्रेशर वो दबने लग गए. तो वो नीचे जाते जाते हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण दे कन्वर्टेड इनटू कोल, है ना. और कोल बनता किससे है? कार्बन से बनता है. तो क्योंकि कार्बन से बना है इसलिए इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं. ठीक है. सो हियर द डेफिनेशन ऑफ कार्बनाइजेशन इज गिवन. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. ओके, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, है ना. ठीक है. और क्योंकि ये डेड रिमेन से बनता है, डेड वेजिटेशन से बनता है, इसलिए हम इसे
फॉसिल फ्यूल कहते हैं। सी ये कोल माइन है। फ्रॉम दिस कोल माइन द कोल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड, कोल को यहाँ से गड्ढा कर करके निकालते हैं, है ना। और कोल को जब हम हीट करते हैं, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड gas. So that is the reason coal is not preferred nowadays, because it causes a lot of pollution. Coal is produced in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. coal से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं? कोक, कोल तार, कोल गैस। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि what all useful products can be obtained from coal, so the answer would be coke, coal tar and coal gas. Now about these, what is coke? See, coke is a tough, porous and black substance. It is an almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. कोक बहुत टफ होता है, पोरस मतलब गड्ढे गड्ढे वाला होता है और काले रंग का होता है, ठीक है। और ये भी कार्बन होता है, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्योर रहता है कार्बन, है ना। और इसको जो है ना हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए, मतलब मेटल्स को उनके ओर में से निकालने के लिए यूज़ करते हैं, या स्टील के इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो कोक का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कोल तार क्या है? दिस इज कोल तार। इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। ये काले रंग का बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड रहता है जिसकी बहुत गंदी सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 substances, 200 चीज़ों का मिक्सचर है ये। Products obtained from coal tar are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. ये इसमें से जो चीज़ें जो निकलती है उसको हम बहुत तरह की चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, डाइज मतलब कलर, सिंथेटिक कलर, ओके। उसके बाद ड्रग्स, है ना, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स मतलब छत के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफ्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलिन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स। जो नेफ्थलिन बॉल होंगे ना तुम्हारे घर में, जो आप लोग अलमीरा में रखते हैं वाइट वाइट कलर के, जिसमें से खुशबू आती है, वो मॉथ को रिपेल करते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स को भी रिपेल करते हैं। वो भी किस में से प्रोड्यूस होते हैं? कोल तार में से प्रोड्यूस होते हैं, कोल तार से ही बनता है। दीज डेज ब्यूटमिन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। मतलब आजकल हम लोग रोड को ऊपर से कवर करने के लिए ब्यूटमिन का इस्तेमाल करते हैं, कोल तार का इस्तेमाल नहीं करते। पहले हम कोल तार यूज़ करते थे, पर आजकल ब्यूटमिन करते हैं। क्यों? क्योंकि कोल तार जो है हीट के कारण गर्मियों में गल जाते हैं और चिपकने शुरू हो जाते हैं, पर बिटुमिन के साथ ऐसा नहीं होता। नाउ कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से कोक निकालते हैं उस टाइम पे बीच में कोल गैस प्रोड्यूस होता है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। हम लोग इसको बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन इन 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light. पहले हम लोग लाइटनिंग के लिए इसको यूज़ करते थे, मतलब सॉरी लाइटिंग के लिए यूज़ करते थे कि स्ट्रीट की लाइट्स जलाने के लिए हम कोल गैस का इस्तेमाल करते थे। और फर्स्ट टाइम लंदन में 1810 में यूज़ हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जो बाद में जो है इसको हम लाइट के लिए यूज़ ना करके हीट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोल कितने तरह का है, स्टोरी ऑफ कोल पढ़ा कि कोल कैसे बनता है, और कोल के पार्ट्स पढ़े, कोक, कोल तार और कोल गैस। अब इसके बारे में स्टार्ट होता है, इसके बाद में स्टार्ट होता है पेट्रोलियम, जो कि हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो
आप लोग बच्चों, you fill this is your homework, you fill this. For today I am just explaining this much because tomorrow is Wednesday and you have to give your science test of chapter number 4. I have already sent you the PDF of question answers and the keywords also that you are supposed to do, and so many videos I have sent you, and at the same time the PPT I have sent you. With the help of that you can learn for the test of chapter number 4, that is materials, metals and non-metals. And today the introduction of chapter number 5, coal and petroleum, is being given to you. So this is part first, coal and petroleum. Thank you so much. I am ending my video with this.